Namaskar children, welcome once again to your maths class with Poonam Bagga. We are studying chapter 6 triangles from class 10th maths. We have learnt the basic proportionality theorem and also we have learnt its converse. This theorem is also called as Thales theorem. We have also completed the first 6 questions from exercise 6.2 based on these theorems. Today we will be completing this exercise and taking up all its remaining questions, and so be ready with your pen and paper and join me as we start question number 7 from exercise 6.2. Here it is. Using basic proportionality theorem, prove that a line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisects the third side. So here we have been given one statement based on a triangle. So first of all, let us draw one triangle and then we will be relating it with this statement step by step. So first of all, let us draw one triangle. Let this be the triangle, also name it suppose as A, B, C. Now what has been said? A line drawn through the midpoint of one side of a triangle. Now a line is being drawn through the midpoint of one of its sides. यहाँ पर 3 साइड्स हैं, इन 3 साइड्स में से कोई सी भी एक साइड चूज कीजिए और उसका मिड पॉइंट लीजिए. लेट अस सिलेक्ट साइड AB and now let this point D be the midpoint of side AB. Then what has been said? A line is drawn through this midpoint of one side parallel to another side. यहाँ पॉइंट D से, जो कि साइड AB का मिड पॉइंट है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की जा रही है इस तरह से कि वो ट्राइंगल की दूसरी साइड के पैरेलल है. नाउ वी नीड टू ड्रॉ वन लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट D. Here we can draw it in this way. Now this is a line segment. You can imagine that the line will cross this triangle and intersect this triangle at 2 points. We are taking them as D, and now this one can be taken as point E. So DE is now parallel to side BC. ये DE parallel है BC के. Now what we have to prove? Prove that a line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisects the third side. Now which is the third side here in this case? आप देखिए हमने मिड पॉइंट कौन सी साइड का लिया? वन साइड, हियर इट इज साइड AB जिसका हमने मिड पॉइंट लिया D. नाउ इट इज पैरेलल टू अनदर साइड विच इज BC हियर इन दिस केस. BC के पैरेलल है और अब थर्ड साइड जो बच गई वो है AC. तो AC को ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है, ये हमें प्रूव करना है. और इसका क्या मतलब हुआ कि AC के जो 2 पार्ट्स हो रहे हैं वो दोनों पार्ट्स इक्वल हैं. बाइसेक्शन का मतलब AC के जो 2 पार्ट्स हो रहे हैं वो इक्वल हैं. और AC के 2 पार्ट्स क्या हो रहे हैं आप देखिए, AE और EC. यही 2 पार्ट्स हो रहे हैं AE और EC. हमें इन्हें इक्वल प्रूव करना है. बाय बाइसेक्शन वी मीन दिस. या फिर हम प्रूव कर सकते हैं कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AC. Getting it? Now what we have to prove? We have to prove this result using one triangle, and we will be taking the help of triangle ABC to prove this. One more thing, you have already proved this theorem in class 9th, but here in class 10th we will be using basic proportionality theorem to prove this result. So now to prove this statement or to prove this result, we will be taking the help of one triangle, and this is triangle ABC which will be helping us. तो first of all we will be writing whatever is given. क्या क्या दिया है हमें स्टार्टिंग में? हमें दिया है एक साइड AB जिसका मिड पॉइंट है ये पॉइंट D, और फिर हमें दिया है कि DE इज पैरेलल टू BC. तो 2 चीज़ें दी हुई हैं. एक तो D इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB, और किस में ये 2 चीज़ें दी हुई हैं? ऑब्वियसली इन ट्राइंगल ABC. वी आर प्रूविंग दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ वन ट्राइंगल ABC हियर. इसमें हमें 2 चीज़ दी हुई है. फर्स्ट D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, और सेकंड चीज़ क्या दी है कि ये जो लाइन है DE पैरेलल है BC के. और अब हमें प्रूव क्या करना है? वी हैव टू प्रूव दैट AE इज इक्वल टू EC. इसका मतलब AC के 2 इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं. AC इज गेटिंग बाइसेक्टेड हियर. नाउ वी राइट ऑल दिस थिंग फेयरली हियर. वी बिगिन द सॉल्यूशन. We have been given in triangle ABC, D is the midpoint of side AB and DE is parallel to BC, and to prove we have AE equal to EC. ये हमें प्रूव करना है. क्या प्रूव करना है? E is the midpoint of AC. This we have to prove.
Getting it? We have the figure also here with us and now we start the proof. जो इन्फॉर्मेशन दी है वहीं से तो स्टार्ट करेंगे. पहली इन्फॉर्मेशन क्या दी है देखिए, D is the midpoint of side AB. Let us start with this. In triangle ABC, D is the midpoint of side AB. Now this implies that the two parts of side AB, AD and DB, these two are equal. जब ये D मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये पार्ट और ये पार्ट AD और DB ये दोनों लेंथ में इक्वल हुए. दिस इम्प्लाइज AD इज इक्वल टू DB. नाउ इफ वी वांट टू टेक द रेशियो ऑफ दीज टू पार्ट्स, अगर अब हम इनका रेशियो लें AD अपॉन DB तो बताइए कितना होना चाहिए. क्योंकि दोनों की लेंथ इक्वल है तो डिवाइड करने पे हमें 1 मिलना चाहिए. सो दिस विल बी इक्वल टू 1. You can always imagine if we divide by dB on both sides, this will be AD upon DB and this will be DB upon DB, that is 1. आप इस तरह से भी सोच सकते हैं. और सोचिए यहाँ पे कि दोनों पार्ट्स इक्वल हैं तो ऑब्वियसली जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो रेशियो आएगा 1. नाउ लेट दिस बी द फर्स्ट रिजल्ट. नेक्स्ट व्हाट, वी हैव बीन गिवन दैट DE इज पैरेलल टू BC. ये सेकेंड इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ हमें दी हुई है. और जब हमारे पास ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल इस तरह से एक और लाइन हो तो हम क्या अप्लाई करते हैं? येस, द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. नाउ वी विल बी अप्लाइंग दिस थ्योरम. लेट अस नाउ मेक सम स्पेस एंड राइट इट फर्दर. वी राइट हियर नाउ इन ट्राइंगल ABC, DE is parallel to BC. This implies the ratio AD upon DB, this is equal to ratio AE upon EC. इनका रेशियो इक्वल हो जाएगा बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और यू कैन राइट बाय थेल्स थ्योरम. आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर. लेट दिस बी रिजल्ट नंबर 2. गेटिंग इट? हमने क्या किया, क्योंकि D मिड पॉइंट है साइड AB का तो AD और DB दोनों पार्ट्स इक्वल हो गए साइड AB के और इससे हमें ये रेशियो इक्वल टू 1 मिल गया. और फिर क्योंकि DE पैरेलल है BC के तो यहाँ पर ये दो रेशियो AD अपॉन DB और इधर से AE अपॉन EC, AE अपॉन EC ये दोनों रेशियोज इक्वल हो जाएंगे बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. नाउ लुकिंग एट दीज टू रिजल्ट्स व्हाट वी गेट, देखिए AD अपॉन DB की वैल्यू तो 1 है तो इसको हम देख रहे हैं AD अपॉन DB AE अपॉन EC के इक्वल है. इससे हम कह सकते हैं कि AE अपॉन EC की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1 फ्रॉम 1 and 2. फ्रॉम results 1 and 2 we get AE upon EC equal to 1. देखिए ये है equal to AD upon DB and this is equal to 1 तो ये भी AE upon EC equal to 1 हो जाएगा. Now this implies that AE is equal to EC. यही मतलब हुआ, जब ये EC इधर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये इक्वल हो जाएगा AE के. और इसका क्या मतलब है कि AC के जो दोनों पार्ट्स हैं वो लेंथ में इक्वल हैं और यही तो हमें प्रूव करना था. देखिए टू प्रूव AE इज इक्वल टू EC, यही हमें आप देखिए प्रूव करना था और वही हमारे पास रिजल्ट आ रहा है. और इसका क्या मतलब हुआ, जब AE और EC दोनों पार्ट्स इक्वल हैं दिस इम्प्लाइज E इज द मिड पॉइंट of side AC. Getting it? And now this implies that E bisects AC. अगर हम क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन की लैंग्वेज में ही बात करें, E bisects AC and hence proved. The result is proved. Getting it? I hope the question is very much clear to you. यहाँ हमें स्टार्टिंग में दिया था कि एक ट्राइंगल में
एक साइड का मिड पॉइंट है, वहाँ से एक लाइन ड्रॉ की जा रही है सेकेंड साइड के पैरेलल, तो ये प्रूव करना था कि ये लाइन थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगी, उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। यहाँ पर हमने दोनों इन्फॉर्मेशन को यूज़ किया। पहले हमने लिया कि D इज़ द मिड पॉइंट, तो इससे AD और DB दोनों पार्ट्स इक्वल हो गए साइड AB के, जिससे रेशो मिल गया AD/DB इक्वल टू 1। फिर क्योंकि अब DE पैरेलल है BC के, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हमें ये दोनों रेशियोज इक्वल मिल गए प्रोपोर्शन में। और फिर अब हमने जब 1 और 2 रिजल्ट्स को कंपेयर किया तो AE/EC की वैल्यू हमें 1 मिल गई, यहाँ से AE इक्वल टू EC मिल गया, और इसका मतलब E bisects AC, and this is the result that we were supposed to prove. Now with the help of this triangle actually we have proven this result, जो हमें प्रूव करना था। With the help of this triangle and by using the basic proportionality theorem we have proved this result. Okay, next we take question number 8. Here we have, using converse of basic proportionality theorem, prove that the line joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side. यहाँ पर फिर से किसकी बात हो रही है? एक ट्राइंगल की। तो पहले हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, जिससे फिर हम इजीली क्वेश्चन को कनेक्ट कर पाएंगे। Let this be the triangle, this one, and again let us name it as A, B and C. Now this time we have to take the midpoints of any two sides. किन्हीं दो sides के midpoint लेने हैं। And now let us select the sides AB and AC. इनके midpoints लेते हैं। Let this be the midpoint of side AB, name it as D, and this be the midpoint of side AC, name it as E. तो यहाँ पहले से ही दिया गया है कि D AB का midpoint है और E AC का midpoint है, जब हम इस statement से connect कर रहे हैं इस figure को। Now what has been said? The line joining the midpoints. तो यहाँ पर हमें midpoints को join भी करना है। Let us join these midpoints. In this way you will get one line. And what else it has been said? This line is parallel to the third side. This we have to prove. देखिए यहाँ पर prove. Prove that this line is parallel to the third side. अब third side कौन सी बची? यहाँ पर हमने side AB ले ली, उसका mid point ले लिया, side AC भी ले ली जिसका mid point है हमारे पास, तो obviously अब third side है BC। हमें ये prove करना है कि DE parallel है BC के, और क्या information दी है कि D और E mid points हैं sides AB और AC के। अब इस triangle को use करते हुए और फिर converse of BPT we will be proving this statement, and you have already proven it in class 9th, but here in class 10th we will be using the converse of basic proportionality theorem to prove it once again. Here we have whatever is given. We begin the solution. Whatever is given we have written in triangle ABC, D and E are the midpoints of sides AB and AC respectively. देखिए D और E midpoints हैं sides AB और AC के. What we have to prove? We have to prove that DE is parallel to BC. और obviously हमने बात की हुई है कि जब भी हमें दो sides इस तरह से parallel prove करनी है तो यहाँ काम आती है converse of basic proportionality theorem. Now we begin the proof. Proof कैसे start करेंगे? जो information दी है उसी को use करेंगे। पहली information, D is the midpoint of AB. We write here, since D is the midpoint of AB, we have, बताइए ये D मिड पॉइंट होने से क्या दो पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे? ऑब्वियसली AD और DB ये दोनों पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। AD इक्वल टू DB, एंड दिस इम्प्लाइज इनका रेशियो क्या हो जाएगा? AD/DB इट विल बी इक्वल टू 1। जब दोनों की लेंथ इक्वल है तो डिवाइड करने पे ऑब्वियसली वी विल गेट द नंबर 1। नेक्स्ट वी विल यूज द सेकेंड इन्फॉर्मेशन, E इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AC. अगेन E is the midpoint of side AC. इसका क्या मतलब हुआ? अब क्योंकि E मिड पॉइंट है तो ऑब्वियसली ये दोनों पार्ट्स साइड AC के इक्वल हो जाएंगे मेजरमेंट में. सो दिस मीन्स दैट AE विल बी इक्वल टू EC, and further this means that the ratio of these two will be equal to 1. AE और EC इनका आप रेशियो लेंगे
दोनों लेंथ में इक्वल हैं तो डिवाइड करने पे ऑब्वियसली वी विल गेट 1. नाउ लेट अस नंबर दिस एज रिजल्ट 1 एंड दिस एज रिजल्ट 2. अब आप बताइए फर्स्ट और सेकेंड से क्या देखने को मिल रहा है. ऑब्वियसली these two are equal, these two ratios from 1 and 2. We get AD upon DB equal to AE upon EC. ये दोनों रेशियोज इक्वल हो गए क्योंकि ये दोनों की वैल्यू इक्वल टू 1 है. और जब यहाँ पर ये रेशियो इक्वल आ जाए AD upon DB equal to AE upon EC, तो then by the converse of basic proportionality theorem we can say that DE is parallel to BC, and so we can now write here by making some space. We can easily now write that this implies DE is parallel to BC by converse of basic proportionality theorem. You can write the full name in place of this abbreviation, and also you can write the name Thales theorem. So by the converse of this theorem we can easily now say that DE is parallel to BC. I hope the question is clear. Next we take question 9. ABCD is a trapezium. So here this time we have a trapezium in which AB is parallel to DC and its diagonals intersect each other at point O. Show that AO upon BO is equal to CO upon DO. So first of all let us draw one trapezium and then we will visualize all this information given here. This is a trapezium. Let us also name it as A, B, C, D as given in the question, and also AB is parallel to DC. You must be knowing that a trapezium is a quadrilateral in which one pair of opposite sides is parallel, only one pair. AB और DC parallel है लेकिन यहाँ से AD और BC parallel नहीं है. Now what has been given? The diagonals intersect at point O. So here we need to draw the diagonals also. Let us draw them. This is diagonal AC and this is diagonal BD, and now we can also mark this point of intersection as point O. Then we have to show this result AO upon BO equal to CO upon DO. Let us first visualize these lengths AO and BO in this figure. आप देखेंगे ये है AO length और ये है length BO. And now if you see, you will see that AO is one part of diagonal AC and BO is one part of diagonal BD. ये दोनों अलग अलग diagonals के एक एक part हैं, ना कि एक ही diagonal के दो अलग अलग parts. So here if we now write this result as AO upon CO equal to BO upon DO. हमने क्या किया, यहाँ से BO को RHS में ट्रांसपोज कर दिया मल्टीप्लिकेशन में और CO को LHS में ट्रांसपोज कर दिया डिवीजन में. In this way we can write this same result in this form. और अब हम इन लेंथ्स को विजुअलाइज करते हैं. AO upon CO. AO हो गई ये लेंथ और CO हो गई आपकी ये लेंथ. और अब आप क्या देख रहे हैं कि ये AO और ये CO एक ही डायगोनल के दो अलग अलग पार्ट्स हैं, एंड सो वी आर गेटिंग द रेशियो ऑफ टू पार्ट्स ऑफ वन सिंगल डायगोनल. इसी तरह से BO और OD को भी देखिए आप. दिस इज BO एंड दिस इज OD या कह लीजिए DO. अगेन दीज आर द टू पार्ट्स ऑफ वन सिंगल डायगोनल. और जब हम रेशियो लेंगे एक साइड के जो दो पार्ट्स होते हैं उनका रेशियो लेते हैं BPT यूज़ करते वक्त, तो ये रेशियो हमारे काम आने वाला है. So we will be taking this result in this form. Now here we see to get these ratios we need to choose two triangles such that one of their sides is diagonal AC and one of their sides is diagonal BD. ऐसे दो triangles यहाँ पर हमें select करने होंगे जिनमें एक side तो हो diagonal AC और दूसरे triangle की एक side हो BD. Getting it? Now what does this mean? You can select any two triangles. You will get one side as AC and one side as BD. आप triangle लेते हैं ADC तो आपको ये एक side मिलेगी. आप triangle लेते हैं BDC तो आपको ये BD diagonal एक side मिल जाएगी. If you take ABC तब आपको ये AC मिल जाएगा diagonal एक side. और अगर आप triangle लेते हैं ABD तो BD एक side हो जाएगी triangle की. So in this way you can get many triangles with AC as one of their sides or BD as one of their sides. But now to apply the basic proportionality theorem
we also need to have one line parallel to one of the sides of the triangle. एक ऐसी लाइन भी तो चाहिए जो ट्राइंगल की एक दी हुई साइड के पैरेलल हो. तो अब आप अगर ये ट्राइंगल लेते हैं ADC, इस ट्राइंगल की बात करें, लेट मी हाईलाइट इट विद डिफरेंट कलर. इस ट्राइंगल की अगर हम बात करें तब आप देखेंगे कि इस साइड DC के पैरेलल कोई लाइन है ही नहीं जहां से हम AO अपॉन OC कर सकें. इन दोनों पार्ट्स का रेशियो लेने के लिए हमें यहाँ O से एक पैरेलल लाइन की ज़रूरत है, या फिर आप इधर से भी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. यू कैन ड्रॉ वन लाइन पैरेलल हियर इन दिस केस. या तो आप इस तरह से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कीजिए और यहाँ नाम दे दीजिए OE. इस तरह से आप पार्ट्स का रेशियो ले पाएंगे AO अपॉन OC जो हमें चाहिए यहाँ पर. या फिर आप एक लाइन ऐसे भी तो पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं इस साइड की AD के पैरेलल, और तब भी आप पार्ट्स का रेशियो ले पाएंगे CO अपॉन OA, और ये दोनों लेंथ्स का रेशियो मिल जाएगा. लेकिन अगर आप इसको नाम दें F और OF ड्रॉ करें पैरेलल टू दिस साइड AD, तब आपको एक और ट्राइंगल जब चूज़ करना होगा जिसकी एक साइड हो BD, तब आपको एक और पैरेलल लाइन नहीं मिल रही है. सपोज यू टेक नाउ द ट्राइंगल BDC. अब अगर आप ट्राइंगल BDC लें जिसकी एक साइड है BD, डायगोनल BD, तब ऐसे केस में ये इस साइड BC के पैरेलल तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ से AD और BC ये तो नॉन पैरेलल साइड्स हैं. अगर हम ये कंस्ट्रक्शन करेंगे तो ये AD के तो पैरेलल है OF, लेकिन यहाँ पर BC के पैरेलल नहीं है, और ऐसे केस में हम BPT या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अप्लाई नहीं कर पाएंगे, और तब हम रेशियो DO अपॉन OB भी नहीं ले पाएंगे इन ट्राइंगल BDC अगर हम ड्रॉ करते हैं OF पैरेलल टू AD. लेकिन वहीं अगर हम OE को ड्रॉ कर रहे हैं पैरेलल टू DC, तो अपने आप ही ये AB के भी तो पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि AB और DC पहले से ही पैरेलल हैं. ऐसे केस में जब हम ट्राइंगल लेंगे ABD जिसकी एक साइड है डायगोनल BD, this one, let me again change the color to just highlight it, this one, ये ट्राइंगल अगर हम लें ABD, और अब आप देखिए ये OE इस साइड के भी तो पैरेलल है, और फिर से यहाँ हम BPT अप्लाई कर पाएंगे और हमें रेशियो मिल जाएगा DO अपॉन OB, और इस तरह से ये दोनों रेशियोज़ हमारे काम आ सकेंगे, हम दोनों रेशियोज़ फाइंड आउट कर सकेंगे. सो हियर वी विल बी ड्रॉइंग वन लाइन EO पैरेलल टू DC एंड ऑल्सो पैरेलल टू AB. ये हम कंस्ट्रक्शन खुद अपनी तरफ से इस क्वेश्चन में करने वाले हैं. सो नाउ लेट मी क्लियर दिस फिगर so that I can explain you now once again. Yes, this is point D, this is point O, this is A. Now look at this triangle. First we make the construction. यहाँ पर हम OE draw करेंगे parallel to DC and also parallel to AB. और अब हम पहले ये ट्राइंगल कंसिडर करेंगे ADC, ट्राइंगल ADC. इसमें आप देखिए ये OE पैरेलल हो गया DC के, तो आप BPT अप्लाई कीजिए. यू विल गेट AE अपॉन ED इक्वल टू AO अपॉन CO. देखिए यही रेशो यहाँ से कनेक्ट कीजिए, ये रेशो मिल रहा है हमें. इसी तरह से अब हम अगर ट्राइंगल कंसिडर करें विद दिस कंस्ट्रक्शन, ट्राइंगल ABD, इस ट्राइंगल को कंस्ट्रक्शन यूज़ करते हुए कंसिडर करें, तो आप देखेंगे इस ट्राइंगल में ABD में यू विल गेट DE अपॉन EA. अब क्योंकि ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं, तो पैरेलल साइड्स के ऑपोजिट जो वर्टेक्स है D, वहीं से हम रेशियो के पार्ट्स लेना शुरू करेंगे. DE अपॉन AE इक्वल टू, यहाँ से आप लेंगे DO अपॉन BO. गेटिंग इट? BPT अप्लाई कर रहे हैं, DE अपॉन AE, DO अपॉन BO. और अब आप दोनों रिजल्ट्स को कंपेयर कीजिए. यहाँ भी है DE अपॉन AE और यहाँ है AE अपॉन DE. तो आप रेसिप्रोकल ले लीजिए. यू विल गेट द सेम LHS इन बोथ दीज रिजल्ट्स, और वहाँ से आप जब RHS को इक्वेट करेंगे तो आपको ये डिज़ायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा. So here I hope all this is clear, and now we will be giving the answer in a very neat and fair way. First of all, we will write whatever is given. We have been given one trapezium ABCD in which AB is parallel to DC and the diagonals intersect at point O. We have written it here. Given ABCD is a trapezium with AB parallel to DC and diagonals intersect each other at point O. We have to prove this result given in the question, and for this we will do one construction. What construction? We will draw
EO parallel to DC as well as parallel to AB. Draw EO parallel to AB and also parallel to DC, meeting AD at point E. Getting it? Now we begin the proof. For this, look at this कंस्ट्रक्शन पार्ट. EO को हमने ड्रॉ किया है AB के पैरेलल और साथ ही साथ DC के पैरेलल. EO और DC का पैरेलल जो केस है इसको हम पहले कंसिडर करेंगे. EO इज़ पैरेलल टू DC और इसके लिए पहले हम ये ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ADC, दिस ट्राइंगल. First we will consider this one. Getting it? We write here in triangle ADC, EO is parallel to DC by construction. हमने कंस्ट्रक्शन ही ऐसा किया है जिससे ये पैरेलल हो रहे हैं. Now this implies, क्योंकि अब ये दोनों पैरेलल हैं तो by BPT we can say that the ratio AE upon ED, this is equal to the ratio AO upon OC or CO by basic proportionality theorem. Let this be the first result. You can also write by Thales theorem. I hope it is clear. यहाँ पर EO पैरेलल है DC के तो easily हम BPT अप्लाई कर रहे हैं. AE upon ED equal to AO upon OC. Now we will take next case. EO is parallel to AB. अब यहाँ पर देखिए EO ये रही साइड और AB ये रही. इसके लिए हम एक और ट्राइंगल कंसिडर करेंगे, ABD. इस ट्राइंगल पर फोकस करेंगे, ABD, दिस वन, द रेड वन. और आप देख रहे हैं कि ये EO अगेन इट इज़ पैरेलल टू AB एंड नाउ विद दिस हेल्प वी विल बी अप्लाइंग BPT. वी राइट हियर इन ट्राइंगल ABD वी हैव EO पैरेलल टू AB अगेन बाय कंस्ट्रक्शन. हमने कंस्ट्रक्शन ही ऐसा किया है कि ये आपस में पैरेलल है. एंड नाउ दिस इम्प्लाइज अगेन बाय अप्लाइंग द BPT. देखिए ये दोनों साइड्स पैरेलल है तो इनका जो ऑपोजिट वर्टेक्स है D, यहाँ से हम रेशो के पार्ट्स लेना शुरू करेंगे. DE अपॉन AE, दिस इज इक्वल टू DO अपॉन BO. देख रहे हैं आप, DO BO, ये वो रिजल्ट की तरफ बढ़ रहे हैं हम जो हमें प्रूव करना है. अगेन यू कैन राइट बाय थेल्स थ्योरम और बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. नाउ जस्ट हैव अ लुक एट दीज टू रिजल्ट्स. यहाँ पर LHS में है AE अपॉन DE और यहाँ पर है DE अपॉन AE. तो अगर हम इस रिजल्ट का रेसिप्रोकल ले लें तो LHS दोनों में ही इक्वल हो जाएंगे. सो हियर वी विल नाउ टेक द reciprocals on both sides. So we write this implies AE upon DE, this is equal to BO upon DO. You can write taking reciprocals. And now you can give this number 2, the second result. And now compare this first result and second one. आप देखेंगे AE upon ED, AE upon ED या DE. तो LHS दोनों के इक्वल हैं तो अपने आप ही इनके RHS भी इक्वल होंगे. This implies, here we need to mention first the results. From 1 and 2. We get AO upon CO. From here you can see this one, this is equal to BO upon DO. From here you can see this one, क्योंकि इनके LHS इक्वल हैं तो RHS भी इक्वल होंगे. And so from here are we getting the desired result? Just compare it with the one that we were given in the question to prove. यहाँ पर आप देखेंगे CO डिनोमिनेटर में है और BO न्यूमरेटर में है, जबकि हमें जो प्रूव करना था वहाँ पर BO और CO की पोजीशन इंटरचेंज्ड है. सो अगेन वी कैन राइट दिस रिजल्ट हियर एज AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO. बस यहाँ से इन दोनों की प्लेस इंटरचेंज कर दी. BO को हमने LHS में ट्रांसपोज कर दिया, डिवीजन में आ गया, और CO को हमने RHS में ट्रांसपोज कर दिया और मल्टीप्लिकेशन में आ गया. एंड नाउ दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट. वी कैन राइट हेंस प्रूव्ड. गेटिंग इट? तो अब आप फिर से एक बार क्वेश्चन के रिकैप पर चलिए.
क्या दिया था हमें, एक ट्रेपेजियम दिया है ABCD जिसमें दो साइड्स AB और DC पैरेलल हैं, डायगोनल्स O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ये रिजल्ट प्रूव करना है AO अपॉन BO। हमने देखा था कि AO और CO एक डायगोनल के पार्ट्स हैं, AO और CO, तो हमें एक ऐसा ट्रायंगल चाहिए जिसकी साइड हो ये डायगोनल AC, और फिर BO और DO की भी बात हो रही है तो एक और ट्रायंगल चाहिए जिसकी एक साइड हो डायगोनल BD। और जब हम ऐसे डायगोनल्स वाली साइड्स के ट्रायंगल्स चूज़ कर लें तो हमें बीच में एक लाइन पैरेलल भी तो चाहिए थी जिससे कि हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अप्लाई कर पाएँ, पर ऐसी कोई पैरेलल साइड बीच में नहीं दी हुई थी, वो हमने अपने मन से कंस्ट्रक्ट कर ली, ड्रॉ EO पैरेलल टू AB पैरेलल टू DC। और फिर तब हमने दो ट्रायंगल्स ऐसे सिलेक्ट किए जिसमें एक की साइड तो है AC और दूसरे ट्रायंगल के केस में साइड थी डायगोनल BD, और तब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अप्लाई करते हुए हमें ये दो रिजल्ट्स मिले जिनसे इक्वेट करते पर हमें ये डिज़ायर्ड रिजल्ट मिल गया। गेटिंग इट? नाउ वी मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10. The diagonals of a quadrilateral ABCD intersect each other at the point O such that AO upon BO is equal to CO upon DO. Show that ABCD is a trapezium. अब ये क्वेश्चन जस्ट रिवर्स है क्वेश्चन नंबर 9 का। यहाँ पर ये जो रिज़ल्ट हमने क्वेश्चन 9 में प्रूव किया था वो पहले से ही दिया हुआ है और हमें ये प्रूव करना है कि अब ABCD एक ट्रेपेजियम है। एक बार फिर से हम पहले इसका फिगर बनाते हैं। We take the quadrilateral in this way, this be the quadrilateral. Next we have been given the diagonals, they intersect at point O. तो अब हमें diagonals भी ड्रॉ करने होंगे। ये हो गया पहला diagonal और ये हो गया दूसरा diagonal. We name it as A, B, C, D और ये है point O। ठीक है, diagonals of a quadrilateral। ध्यान दीजिए ये अब एक क्वाड्रिलेटरल है, ट्रेपेजियम नहीं बताया है। ट्रेपेजियम तो हमें इसे अब प्रूव करना है और ट्रेपेजियम प्रूव करने के लिए हमें ये प्रूव करना है कि इनकी एक पेयर जो है ऑपोजिट साइड्स की ये पैरेलल है। यहाँ हमें ये प्रूव करना है कि AB और DC पैरेलल हैं। ये प्रूव करते ही ये क्वाड्रिलेटरल एक ट्रेपेजियम कहलाएगा और यही हमारा काम प्रूव हो जाएगा। तो अब आप देखिए दिया क्या है, AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। फिर से यहाँ पर आप रेशो देख रहे हैं और इसी रिजल्ट को हम फिर से अगर ऐसे लें AO अपॉन CO इक्वल टू BO अपॉन DO, तो आप देखेंगे ये डायगोनल AC के दो पार्ट्स का रेशो है और ये डायगोनल BD के दो पार्ट्स का रेशो है। तो अब हमें ऐसे दो ट्रायंगल्स कंसिडर करने होंगे जिनके कि ये दोनों पार्ट्स हैं और फिर उनका रेशो भी लेना है। तो फिर से हमें बीच में एक लाइन चाहिए पैरेलल जिससे कि हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अप्लाई कर पाएँ और इस तरह से ये रेशो हमें मिल पाए। तो फिर से हम इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन करेंगे EO पैरेलल टू, नाउ दिस टाइम पैरेलल ओनली टू वन साइड DC। सिर्फ एक साइड DC के पैरेलल हम कंस्ट्रक्ट करेंगे क्योंकि अभी हमें क्वेश्चन में ये नहीं दिया है कि AB और DC पैरेलल हैं, ये हमें नहीं दिया है। हमें दिया है ये एक सिंपल क्वाड्रिलेटरल है। तो अभी हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, सिर्फ हम एक ही साइड के पैरेलल इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे और फिर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अप्लाई करेंगे। और अगर तब प्रूव करते समय ये DC इस AB के पैरेलल प्रूव हो गई तब हम कह पाएंगे कि ये ABCD एक ट्रेपेजियम है। गेटिंग इट? नाउ वी मूव टूवर्ड्स इट्स सॉल्यूशन। और इसको प्रूव करने के लिए पहले हम लिखेंगे जो भी हमें दिया हुआ है, गिवन पार्ट वी राइट हियर, given in quadrilateral ABCD diagonals intersect each other at point O such that AO upon BO equal to CO upon DO। ये रिजल्ट अब हमें पहले से ही दिया हुआ है। Now to prove we have ABCD is a trapezium, ये हमें प्रूव करना है और फिगर हमारे पास है। We have to do one construction, we have to draw EO parallel only to side DC। बस यही दो पैरेलल कर रहे हैं हम। Draw EO parallel to DC meeting AD at point E। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन कर लिया। नाउ वी बिगिन द प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन फ्रॉम द फर्स्ट वन दैट इज गिवन AO upon BO, this is equal to CO upon DO. This implies AO
अपॉन CO, दिस इज इक्वल टू BO अपॉन DO। इसको आप पहला रिजल्ट मान लीजिए। हमने क्या किया, वही काम किया है, यहाँ से इंटरचेंज कर दी BO और CO की पोजीशन। CO को हमने LHS में डिवीजन में ट्रांसपोज कर दिया और BO को हमने RHS में मल्टीप्लिकेशन में ट्रांसपोज कर दिया। तो इस रिजल्ट से हम इस रिजल्ट पे पहुँच सकते हैं। ये है हमारा पहला केस। नाउ वी मूव टूवर्ड्स दिस ट्रायंगल ADC। इस ट्रायंगल पर फोकस करते हैं जिसमें हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ की है। वी राइट फर्दर, इन ट्रायंगल ADC EO is parallel to DC by construction। हमने कंस्ट्रक्शन ही ऐसा किया है। देन दिस इम्प्लाइज, अब क्योंकि ये पैरेलल है तो यहाँ कौन सी थ्योरम अप्लाई होगी? यस, द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। वी कैन से AE अपॉन ED दिस इज इक्वल टू AO अपॉन CO। देख रहे हैं आप, बाय बेसिक proportionality theorem or by Thales theorem also you can write। And now you will see, here we have AO upon CO, here again we have AO upon CO। Let this be result number 2। देख रहे हैं आप, यहाँ से आप, क्योंकि AO अपॉन CO के इक्वल है BO अपॉन DO और यहाँ पर AO अपॉन CO के इक्वल है AE अपॉन ED, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे जब हम दोनों रिजल्ट्स को कंपेयर करेंगे। ऑब्वियसली जब इनके एक एक पार्ट्स जिनके इक्वल हैं वो सेम है तो ये दोनों पार्ट्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। वी राइट हियर फ्रॉम 1 and 2 we get what we get from here, we get AE upon ED and this is equal to BO upon DO। अब इनको ज़रा विजुअलाइज कीजिए यहाँ फिगर में। AE upon ED, let me change the color also। AE upon ED और फिर हमें दिख रहा है BO upon DO, AE upon ED और फिर BO अपॉन DO। ये दोनों रेशोज़ हमें इक्वल दिख रहे हैं और जब ये दोनों रेशोज़ इक्वल हैं, ये कौन से ट्रायंगल से कनेक्टेड हैं? आप देखिए, ट्रायंगल DAB इस ट्रायंगल से कनेक्टेड है और जब ट्रायंगल की इन साइड्स के जो पार्ट्स हैं उनका रेशो इक्वल है तो यहाँ कौन सी थ्योरम अप्लाई होगी? यस, द कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और इसके कन्वर्स से हम कह सकेंगे कि ये जो EO है ये पैरेलल है AB के और EO तो पहले से ही DC के पैरेलल है, तो ऐसा करने से AB और DC भी आपस में पैरेलल हो जाएंगे और तब ये ABCD एक ट्रेपेजियम प्रूव हो जाएगा। सो हियर वी बिगिन। लेट मी चेंज द कलर वंस अगेन एंड नाउ हियर वी राइट दिस implies in triangle ABD we have EO parallel to AB by converse of basic proportionality theorem। ठीक है, EO पैरेलल आ गई AB के, बट EO इज पैरेलल टू DC। हमने कंस्ट्रक्शन ही ऐसा किया था, बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसके बाद इसको रीड कीजिएगा आप। हाँ, EO पैरेलल है AB के बाय कन्वर्स ऑफ BPT, बट EO इज पैरेलल टू DC। हमने स्टार्टिंग में कंस्ट्रक्शन ही ऐसा किया था। दिस इम्प्लाइज दैट AB इज पैरेलल टू DC। जब AB भी EO के पैरेलल है और DC भी EO के पैरेलल है तो ये आपस में भी तो पैरेलल हुए और यहीं से रिजल्ट निकल रहा है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है। सो हियर वी नाउ राइट दिस इम्प्लाइज ABCD is a trapezium and hence the result is proved। जो हमें प्रूव करना था वो प्रूव हो गया है। एक बार फिर से इसको विजुअलाइज करते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि एक क्वाड्रिलैटरल है जिसके डायगोनल्स पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ये रेशो इक्वल है और हमें प्रूव करना है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है।
यहाँ पर फिर से हमने कंस्ट्रक्शन किया, EO को पैरेलल ड्रॉ किया, इस बार सिर्फ DC के पैरेलल, और इसीलिए इस ट्राइंगल ADC में हम यहाँ पर BPT अप्लाई करते हुए ये दोनों रेशियोज़ इक्वल लिख पाए। फिर जो रिज़ल्ट हमें दिया है यहाँ पर देखिए, इससे हमने ये फॉर्म क्रिएट किया, और अब आप देखिए कंपेयर कीजिए रिज़ल्ट 1 और रिज़ल्ट 2 को। दोनों ही केस में आपको AO अपॉन CO दिख रहा है। इससे हमारे पास AE अपॉन ED इक्वल आ गया BO अपॉन DO की, और जब ये दोनों रेशियोज़ इक्वल आ गए तो आप इस ट्राइंगल में देखिए ABD में DE अपॉन AE इक्वल आ रहा है DO अपॉन BO के। ठीक है, अगर आप इसका रिवर्स करें, यहाँ पर आप इसका रेसिप्रोकल भी ले सकते हैं। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो आप यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल भी लिख सकते हैं। रेसिप्रोकल लेने पर आपका ये हो जाएगा DE अपॉन AE इक्वल टू DO अपॉन BO। ऐसे में भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर फिगर में अगर आप देखेंगे DE अपॉन AE, DE अपॉन AE इक्वल टू DO अपॉन BO। अगर हम इसी रिज़ल्ट का रेसिप्रोकल लें, ज़रूरी नहीं है, आप इसी रिज़ल्ट से ये इन्फर कर सकते हैं कि EO AB के पैरेलल है बाय कन्वर्स ऑफ BPT, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे रेसिप्रोकल लिखकर फिर भी आप इस रिज़ल्ट तक पहुंच सकते हैं। एंड विद दिस वी सी दैट EO इज़ पैरेलल टू AB बाय द कन्वर्स ऑफ BPT। और लेकिन EO तो पहले से ही DC के पैरेलल है, हमने कंस्ट्रक्शन ही ऐसे किया था, EO पैरेलल टू DC, और अब EO पैरेलल आ रहा है AB के, तो दिस मीन्स दैट AB इज़ पैरेलल टू DC, एंड दिस फर्दर मीन्स दैट ABCD इज़ अ ट्रेपेजियम, क्योंकि ट्रेपेजियम में वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज ऑलवेज पैरेलल। तो अब हमें एक पेयर ऑपोजिट साइड्स का पैरेलल मिल रहा है, तो ये एक ट्रेपेजियम है, एंड हेंस द रिजल्ट इज प्रूव्ड। I hope all these questions are very much clear to you. We have now completed exercise 6.2. Again practice these questions to get perfection, and only then we can proceed towards similarity of triangles in much detail. Okay then, soon we will meet in another class. Goodbye.